Hello friends, we'll start the session in another 1 minute. Hopefully you all are receiving my voice very clearly. If not, please let me know. Welcome you all to a new session, a fourth day of the 10-day classes, and the third day for the GST course. Hope you all are fine, staying at home, enjoying the lockdown period with your learnings. We have here given the details of contact in case you have any queries or if you want to give any feedback, and it's really very invited. Starting with the day, we are on the third day of the GST part. GST part will take around 5 days to cover all the aspects what we have thought for this coverage. So till now what we have discussed is almost the theoretical part and the basic part. Base of the GST, what how it works upon, what is the with power authorize the government to collect GST, and how the basic structure of GST. GST need to be paid on the sales, need to be collected at the time of sales, and need to be paid at the time of purchase. And this liability minus asset has to be paid in the cash at regular intervals to the government. Yesterday, what we have discussed is three main topics. I would say three spinal cord of the GST: input tax credit under GST, which provides which underlines three aspects. First is four condition we have discussed for availing the ITC. The conditions include receipt of tax invoice. Second condition is goods and services should have been received. Third condition is supplier has paid the taxes, and fourth is I have filed my return myself. Time limit 6 months from the end of the financial year. Block credit means the credit which is not allowed in any of the circumstances. Cross utilization of under GST, we have read four rules. First one, utilize IGST ITC with IGST payable. Second rule, balance IGST ITC with CGST SGST payable. Third rule, CGST with CGST, SGST with SGST. And the fourth and the last rule is CGST and IGST ITC balance with the IGST payable. Last we have discussed is the time of supply. Time of supply indicates the point, the date on which the taxation liability, on which the GST liability has arisen for me. We have discussed for the goods and both for the services also. Goods means before the removal of the goods from my factory gate. Factory gate से बाहर निकलने से पहले आपको invoice create करना होगा, and that date will be treated as the date of time of supply. In case of services, we have to see whether the invoice is created within 30 days of the completion of service. If it is created within 30 days of the service, then date of invoice or date of payment. If it is not created within 30 days of the service, then date of completion of service or the date of payment, whichever is earlier. Hope you have all gone through the concepts. We have sent the PPT yesterday itself. Today we will start, from today onwards we will be starting few of the practical aspects of the GST. हमने बेसिक समझ लिया, सेल के ऊपर जीएसटी लगता है, परचेज के ऊपर जीएसटी लगता है, बट नाउ वी हैव टू सी द प्रैक्टिकलिटी, how it practically applies, what are the different problems what the industry faces, what the consultant faces. So starting with the first leg of the practical aspect, start with the registration. First of all, anyone if want to come in the law ambit of the GST, then he have to register under the GST.
So first aspect what we want to discuss today is what is the process of GST registration, who is actually liable to get registered under the GST, what are the threshold limits for the GST, and what is the concept of distinct person. This is all we are going to discuss under the GST registration. So I'm starting my discussion for the day. Registration under the GST. In this first slide, I just have tried to bring you few facts about the GST. The first point says GST is a combination of central tax and state tax. Please listen me very carefully. In this 4 point, I will discuss one point which is very, very important, which will lay the base for the GST registration also. GST is a combination of central tax and the state tax. फर्स्ट डे ही मैंने जीएसटी क्लास में आपको ही बताया था, जीएसटी इज नॉट ओनली द कलेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. Unlike GST, unlike income tax, sorry, I repeat my word, unlike income tax, GST registration need to be obtained in each state wherever it operates. प्रॉब्लम क्या हुआ? फॉर एन एग्जांपल डाबर इंडिया लिमिटेड की बात कर रहा हूँ. डाबर इंडिया लिमिटेड ऑपरेट्स इन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 स्टेट्स ऑफ अ कंट्री. दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में भी है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट में भी है. नाउ एवरी स्टेट वांट कि भैया आप हमें टैक्स दीजिए, बिकॉज स्टेट टू स्टेट डिफर करता है. सो एज लाइक इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और वो पूरे इंडिया की एक ही गवर्नमेंट है, तो वहां पर हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन एज जीएसटी इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, तो यहाँ पर हमें अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीएसटी जो है ये स्टेट का टैक्स है मेजरली. जिस स्टेट में आप काम करेंगे उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा. अगर आपकी 4 ब्रांचेस हैं, आप दिल्ली से भी ऑपरेट करते हैं, आपको हरियाणा से भी ऑपरेट करते हैं, आप पंजाब से भी ऑपरेट करते हैं, तो यू हैव टू टेक 3 सेपरेट रजिस्ट्रेशंस. एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या एक कंपनी के पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल. एक कंपनी के पास n नंबर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, बिकॉज इट कैन गो इन 36 स्टेट्स, एंड 36 स्टेट प्लस दे कैन हैव मोर देन वन रजिस्ट्रेशन also. It could also be possible कि एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो. तो एक कंपनी के जरूरी नहीं है एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, इट कैन बी n नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस. Third point is very important point. Please listen me. Each registration is considered as 2 different person under GST. ये क्या प्रॉब्लम आ गई है? Each registration, each GST, each state में operation is considered as 2 different person under GST. दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, हरियाणा का रजिस्ट्रेशन. जीएसटी की लैंग्वेज में दोनों अलग अलग थर्ड पार्टी या अननोन पर्सन की तरह ट्रीट होंगे. They will never be treated as the same person. They will never be treated as a single person. They are 2 different person. Delhi person, Delhi GST and Haryana GST. GST means GST identification number. Delhi GST number, Haryana GST number. Both are different person. They are very much similar as like a third party. अगर वो डाबर दिल्ली में भी है, डाबर हरियाणा में ही है, डाबर हरियाणा को कुछ सप्लाई कर रहा है, कुछ गुड्स मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो डाबर दिल्ली के लिए वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन है कि वो डाबर को भेजे या किसी और पार्टी को भेजे. दिस विल बी सिमिलर. उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे जीएसटी किसी थर्ड पार्टी को सेल करते वैसे लगाते, सिमिलर वे में डाबर हरियाणा को जो सेल कर रहे हैं वैसे लगाएंगे. थर्ड पार्टी को सेल करते तो आईजीएसटी लगाते. सिमिलरली अगर वो डाबर दिल्ली वाले डाबर हरियाणा को भेज रहे हैं तो वहां पर भी आईजीएसटी लगा के ही भेजेंगे, एंड हरियाणा पर्सन नीड टू पे फॉर द आईजीएसटी अमाउंट आल्सो. लास्ट पॉइंट व्हाट आई सेड इज मोर देन वन रजिस्ट्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन वन स्टेट. दैट वी विल, एक से ज्यादा एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं. कोई कंपनी है, लेट्स टेक एन हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लेता हूं. उनका हेल्थ सप्लीमेंट डिपार्टमेंट अलग है, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट अलग है, तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के दे कैन हैव डिफरेंट सेगमेंट्स एंड देन कैन ऑपरेट सेपरेट, दे कैन हैव डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द सेगमेंट ऑफ देयर बिजनेस. मोर ओवर कुछ कंपनीज ऐसे भी करती हैं कि फैक्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन अलग लेती हैं,
वेयर हाउसेस का रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग लेती है. These are all are tax planning tools what they can opt for. Next is the threshold limit for GST registration. For example, मैं एक छोटा सा पर्सन हूँ. फर्स्ट डे मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को किराने की दुकान खोलनी है. किराने की दुकान खोलनी है तो गवर्नमेंट के मेरे पास आज मैंने डिसाइड करा है तो जरूरी नहीं है मुझे आज ही रजिस्ट्रेशन लेने जाना है. जीएसटी इज अलाउड और आई वुड से इट इज मैंडेटरी to be taken only when your business crosses certain amount, certain threshold limit. Until and unless that threshold has not been crossed, you are not liable to take the registration. You are not mandatorily required to take the GST registration. अब जो लिमिट्स मैं बताऊंगा उससे ज्यादा अगर किसी की सेल होती है देन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में सेम है. स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करती है एज ऑन डेट. अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर की बात करता हूं, इफ अ पर्सन इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अगर उसका टर्नओवर मोर देन 20 लाख एक्सीड करता है देन ही इज रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन. अगर उसका टर्नओवर मोर देन 20 लाख क्रॉस करता है देन ही इज रिक्वायर्ड टू टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन. अगर कोई पर्सन गुड्स में डील करता है, प्लीज गो विद मी आल्सो जस्ट अ सेकंड. Just a second, please. Yes. So service provider turnover more than 20 lakhs, he is required to take the registration. But if I'm not a service provider, I am dealing in goods, then I am liable to take the registration only if the turnover falls 20 to 40 lakhs. 20 lakhs is somewhere a limit, 40 lakhs is somewhere else. मतलब it varies state to state. काफी स्टेट्स में 20 लाख का लिमिट है, काफी स्टेट्स में 40 लाख का लिमिट है. तो इट डिपेंड्स कि मैं कौन सी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ, उस स्टेट की मुझे लिमिट को चेक करना होगा. देन ओनली आई एम रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन. एंड दिस लिमिट हैज बीन रिसेंटली चेंज इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ. अर्लियर इट वाज 20 लाख इटसेल्फ. अगर कोई पर्सन सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसका 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है देन ही इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट. अगर वो गुड्स में डील करता है तो ही हैज टू फर्स्ट सी कि वो कौन सी स्टेट में डील कर रहा है, कौन सी स्टेट से ऑपरेट कर रहा है एंड उस स्टेट में क्या लिमिट है. इफ इट वेरीज बिटवीन 20 टू 40 लाख एज ऑन डेट. अगर कोई पर्सन गुड्स और सर्विस दोनों में कर रहा है तो उसकी लिमिट 20 लाख ही है आज भी. उसके लिए अगर वो सर्विस का कुछ भी पार्ट आ जाता है तो 40 लाख का लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. देन ही हैज टू सी फॉर द 20 लाख लिमिट ओनली. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब होता क्या है, मैंने डाबर का एग्जांपल लिया था. डाबर ऑपरेट्स इन दिल्ली आल्सो, डाबर ऑपरेट्स इन हरियाणा आल्सो. अब दिल्ली वाला कहता है कि मेरी तो सेल 20 लाख से ज्यादा है नहीं, मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. हरियाणा वाला कहता है मेरी सेल 20 लाख से ज्यादा नहीं है, मुझे भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. जब डाबर की P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है अपने आप को, जब क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो कोई स्टेट का नहीं बनता, वो पूरी कंपनी का एक बनता है. जब पूरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो उसमें पता चलता है डाबर की सेल 35 लाख है. अब केजरीवाल एंड खट्टर सरकार दोनों आती है, वो कहते हैं क्यों हमें टैक्स क्यों नहीं मिला, ये तो सेल 20 लाख से ज्यादा है. तो डाबर बोलती है कि मेरी तो दिल्ली में भी सेल नहीं थी, हरियाणा में सेल नहीं थी. तो लॉ हैज बीन ड्राफ्टेड इन सच अ वे कि 20 लाख का जो लिमिट है वो आपको ऑन अ पैन इंडिया बेसिस पे देखना होगा कि ऑल इंडिया की आपकी सेल अगर 20 लाख से ज्यादा है, इवन दो यू आर लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन इन पर्टिकुलर स्टेट. फॉर एन एग्जांपल, हरियाणा में सेल मेरी 23 लाख रुपीज है, दिल्ली में सेल्स मेरी 1 लाख रुपीज है. इन आवर एग्जांपल इवन इफ दिल्ली में सेल्स हमारी 1 लाख रुपए है, but we are still required to mandatorily take registration in Delhi since the whole India Dabur GST registration threshold is more than 20 lakh rupees. So hope it is clear till now. Now I am running to the next slide. अभी जो हमने बात करा वो थ्रेशोल्ड्स की बात करी. अगर आपकी सेल इससे ज्यादा इंक्रीज करती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा. बट गवर्नमेंट ने कुछ केसेस सिनेरियोस बता दिए कि वहां पर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा.
इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड, चाहे आपकी सेल्स 1 रुपए की भी है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड आपको फर्स्ट डे से वो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो सिनेरियोस क्या क्या है दैट हैज बीन कैप्चर्ड हियर इन द स्लाइड, आई विल डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट सेज पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई ऑल नो वेरी वेल, मतलब अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं, अगर मैं दिल्ली से बाहर इवन इफ सिंगल रुपीस की भी सप्लाई करता हूं, then also I am required to take GST registration. This is very important. अगर मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं 1 रुपए की सेल भी बाहर नहीं कर सकता until and unless I have a GST registration. This is very important. Person making interstate supply, क्योंकि आज के दिन में काफी लोग ऐसे करते हैं कि सप्लाई कर देते हैं अपने स्टेट से बाहर और उनको पता ही नहीं होता कि ये कंडीशन है लॉ के अंदर कि उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। पहले जब ये लॉ ड्राफ्ट हुआ था उस टाइम पे ये लिखा हुआ था इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे आप गुड्स चाहे सर्विसेज आप दोनों ही स्टेट से बाहर नहीं दे सकते। आप दोनों ही अगर स्टेट से बाहर दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। बट अगेन गुड्स वालों को तो पहले से आदत थी, बिकॉज वैट लॉज में भी ये चीज होती थी, सेल्स टैक्स के लॉ में भी ये कंडीशन होती थी कि आप आउटसाइड सेल मटेरियल भेजेंगे देन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द वीएटी रजिस्ट्रेशन। बट सर्विस टैक्स वालों को ये बात नहीं पची, सर्विसेज वालों को ये बात इसलिए नहीं पची। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली में बैठा हूं और मेरे पास एक क्लाइंट आता है विच इज रजिस्टर्ड इन हरियाणा। अब मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, मैं हरियाणा उस क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकता until unless I have a GST registration, because it is an interstate supply। मैं GST रजिस्ट्रेशन कराने जाता हूं तो इट कॉस्ट मी 18% एक्स्ट्रा टैक्स। तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये क्लियर करा कि सर्विसेज के लिए क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा टिल द टाइम आपका सर्विसेज का टर्नओवर भी 20 लाख से ज्यादा का नहीं होता है। तो so now it is very much clear that interstate supply only of goods without any limit is required to be taken as registration, but interstate supply of services up to rupees 20 lakh rupees is allowed to operate without the GST registration। इसमें काफी कुछ आगे और भी लिखा हुआ है which I don't know कितना अंडरस्टूड अभी आप कर पाएंगे। We will discuss all those languages transaction words one by in going forward, but as of now मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Person who are required to pay tax under reverse charge, अभी आप कुछ डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, हम सेल करते हैं और पैसा सामने वाले से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं, दिस इज नॉर्मल जीएसटी, दिस इज कॉल्ड एट फॉरवर्ड चार्ज। मैंने अपने बायर से पैसा कलेक्ट करा और गवर्नमेंट को जमा करा दिया, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज। अभी कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर गवर्नमेंट बोलेंगी कि पैसा आपको सामने वाले से लेके जमा नहीं कराना है, सामने वाला डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराएगा, उस केसेस को रिवर्स चार्ज बोलते हैं। अभी आपको उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, रेस्ट ऑफ द केसेस इतने मैंडेटरी या फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारी डेली डे टू डे लाइफ में यूज हो, बट एक बार ओवरव्यू कराने के लिए आई विल रीड आउट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द लॉ। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज, फर्स्ट थिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है मैं दिल्ली में ऑपरेट करता हूँ, दिल्ली में ऑपरेट, मेरा सारा बिजनेस दिल्ली में है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा कोई एग्जीबिशन हो रहा है गोवा के अंदर फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, लेट्स से 1 डे 2 डे 3 डे, 3 दिन के लिए मुझे गोवा में भी बिजनेस करना है। गोवा में जाके मैं होटल रेंट पे ले रहा हूँ या फिर कुछ एग्जीबिशन है वहां पर जाके मटेरियल सेल कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी दूसरी स्टेट में एक कैजुअल मतलब कैजुअली जा रहा हूँ तो उस बिजनेस करने के लिए तो उस पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन की कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ इज अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कुछ आउटसाइड इंडिया से पर्सन आके बाहर इंडिया में बिजनेस करते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, कोई ई कॉम कंपनी के थ्रू वर्क करता है तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बेसिक नॉलेज परस्पेक्टिव, दिस इंटरस्टेट सप्लाई कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गुड्स के लिए तो इन एनी केस 20 lakhs, विदाउट 20 lakhs, सर्विसेज के लिए 20 lakhs तक का एग्जेम्पशन अलाउड है। प्लीज नोट इट डाउन हियर, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। मेजर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, देयर इट हैज बीन डिस्कस्ड। सबसे पहले कोई भी बिजनेस है तो उसका पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड हमें चाहिए होगा, वैलिड इंडियन फोन नंबर एंड ईमेल आईडी चाहिए होगा उसका,
आई एम रीडिंग आउट वन बाय वन. इफ एनीवन फील्स एनी इशू जो उसको समझ में ना आ रहा हो, देन प्लीज पिंग मी अप इन द जूम चैट, आई विल एक्सप्लेन दैट. मैं रिपीट कर रहा हूँ. पैन कार्ड चाहिए होगा, फोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए. सेकेंड थिंग, जहां से आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, जहां पर आपका ऑफिस है, या तो वो ऑफिस आपका होगा या आपने रेंट पे लिया होगा. अगर आपका है तो आपको रजिस्ट्री के पेपर प्लस रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल. अगर रेंट पे लिया होता है, रेंट एग्रीमेंट प्लस रीसेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द नेम ऑफ लैंडलॉर्ड, वो आपको लगाना होगा. थर्ड इज ऑथराइज सिग्नेटरी फोटोग्राफ्स. बिजनेस मेरा है, आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, बट समटाइम्स ऑथराइज सिग्नेटरी मैं साइनिंग कौन करेगा जीएसटी रिटर्न्स की, उनको बोलते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी. हु इज द पर्सन हु इज ऑथराइज टू साइन द डॉक्यूमेंट्स. सो जनरली क्या होता है, प्रोप्राइटर जो होते हैं वो खुद ही ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं. लेकिन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर तो हर जगह साइन नहीं करेंगे. जो वहां पर लोकल लेवल या स्टेट लेवल पे बंदे होते हैं उनको हम ऑथराइज सिग्नेटरी बना देते हैं. तो उन ऑथराइज सिग्नेटरी की फोटोग्राफ्स लगेंगी. कंपनीज के केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो लगेगा. पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड लगेगी. यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें हम काम करना चाहते हैं वो हमें बताने होंगे. तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ओनली फाइव गुड्स और सर्विसेज हमें देने होते हैं विच हैव हाईएस्ट हायर टर्नओवर इन आवर कंपनी. जो हाईएस्ट चीजों में हम डील कर रहे हैं, टॉप 5 चीजों में, उनकी हमें लिस्ट देनी पड़ती है. डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड टू साइन. डिजिटल सिग्नेटरी ओनली इन केस ऑफ कंपनीज इट इज रिक्वायर्ड. इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप आप आधार कार्ड के थ्रू भी साइन कर सकते हैं. लास्ट इज बैंक अकाउंट डिटेल. बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी होगी. लेकिन अभी एक प्रॉब्लम इसमें आया था, लोग कह रहे थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल कैसे होगी, बिकॉज जब तक हमारा बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारा बैंक अकाउंट कैसे ओपन हुआ. तो गवर्नमेंट हैव गिवन अस सम रिलैक्सेशन. तो व्हाट दे सेइंग कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. रजिस्ट्रेशन कराने के 45 डेज के अंदर अंदर हमें बैंक अकाउंट की डिटेल आप सबमिट कीजिएगा. सो दीज ऑल आर डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर प्राइमरीली रिक्वायर्ड टू टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन. Here I have given the process of GST registration. First, we will understand this process. Then we will go and see the practical. How practically GST registration has to be done. We will see a live version of the GST registration. We will do one registration today itself. First is, सबसे पहले जो हमने डॉक्यूमेंट्स जितने हमने लिखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने होंगे. Second says visit to the site www.gst.gov.in. एक काम करते हैं, वन बाय वन ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली. सबसे पहले लिखा हुआ है अरेंज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन. फॉर सैंपल पर्पसेस आई हैव कलेक्टेड फ्यू डॉक्यूमेंट्स फॉर योर इंफॉर्मेशन. मैंने एक सैंपल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके लिए रखे हुए हैं सो दैट आई कैन शो यू द लाइव वर्जन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन. दिस इज रेंट एग्रीमेंट. दिस इज पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी. This is the allotment letter. Allotment letter, or you can say electricity bill. We can attach any one of the same. Next point says visit www.gst.gov.in. Hope you all guys are with me only. Please stay with me because we will learn the GST registration process. मैंने साइट ओपन करी है www.gst.gov.in. We are learning the registration process, how to register ourselves first time in the GST. सर्विसेज के टैब में जाएंगे. रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा. प्लीज स्टॉप मी वेयर एनीवन फाइंड डिफिकल्टी. सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन. आई एम गिविंग सम. सबसे पहले पूछता है हु आर यू, मतलब हियर आई एम अ न्यू रजिस्ट्रेशन, आई एम अ टैक्स पेयर. बाकी सब ऑप्शन भी है, टैक्स डिडक्टर, ई कॉमर्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर. दीज आर नॉट एप्लीकेबल इन 99% ऑफ द केसेस. टैक्स पेयर का एक ऑप्शन आता है. देन इट आस्क फॉर द स्टेट और यूटी. आप कौन सी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द दिल्ली. मैंने दिल्ली अप्लाई करा.
नॉय टास्क दिल्ली में कौन से रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं? आई अप्लाई इन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेंट्रल दिल्ली। मैं कोई भी एग्जांपल देता हूँ। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस का मीनिंग होता है जो आपके पैन कार्ड पे नाम है। मेरे पैन कार्ड पे नाम योगेश जैन है, लेकिन मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ एबीसीडी कंसल्टेंट सर्विसेज से, तो यहाँ एबीसी कंसल्टेंट सर्विसेज नहीं आएगा, यहाँ पैन कार्ड वाला नाम आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। फिर यहाँ डालना होता है पैन नंबर, पैन नंबर भी डाल देंगे इसके अंदर। ईमेल आईडी डालनी होती है, मैं अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल देता हूँ, और मोबाइल नंबर यहाँ डालना होता है। यहाँ पर पैन नंबर डालते ही आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया है, पैन नंबर डालते ही प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है। देन प्रोसीड पे क्लिक करते ही इट विल गिव यू एन ऑप्शन कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप डालिए इसके अंदर। पैन नंबर एंड मोबाइल, मेरे मोबाइल पे जो मैंने ईमेल आईडी डाली थी और जो फोन नंबर डाला था, उन दोनों पे मेरे पास एक ओटीपी आया है। दैट ओटीपी आई एम टाइपिंग इट हियर। ओटीपी डालने के बाद आई विल प्रोसीड फॉर द एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। दिस विल कॉल्ड टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर से ही आगे जितने भी आप, ये टेम्परेरी रेफरेंस जो होता है ये 15 डेज के लिए जनरेट हो जाता है। 15 डेज के लिए, विद इन 15 डेज आप कभी भी आके इस नंबर को यूज करके रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। कैसे होगा? ये नंबर आपके पास ईमेल में भी आ जाएगा। फॉर माय कन्वीनियंस मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ताकि क्योंकि हम अभी रजिस्ट्रेशन इसमें अप्लाई ही कर रहे हैं। हम अगेन वापस सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। पहले हमने न्यू रजिस्ट्रेशन में टाइप करा था, अब हम टेम्परेरी रेफरेंस नंबर में टाइप करेंगे, और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो हमारे पास आया था वो हम डाल देंगे। बट नॉट दिस टाइम, वो मोबाइल और फोन दोनों पे आएगा। Is it clear now? My voice is not coming. I got just a message. Now is it clear? Should I continue or have you left something?
and continuing here itself. आपके पास ओटीपी आया था, आपने टीआरएन नंबर से लॉगिन कर लिया, एक्शन में जाके ओपन कर लिया. नाउ ट्रेड नेम इज कि आप किस बिजनेस के नेम से आपका ओपन करना चाहते हैं. दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू करेक्टली स्पेल इट आउट, बिकॉज इसी नेम से आपका बैंक में अकाउंट भी ओपन होगा एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल जहां पर भी आप कोई भी कंप्लायंस करना चाहते हैं वो सब इसी नाम से होगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने XYZ कंसल्टेंसी. ये नेक्स्ट पूछेगा कि आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं. सिंस मैंने एक पैन नंबर अपना इंडिविजुअल का दिया था, तो आई कैन ओपन ओनली इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप. अदरवाइज फॉरेन कंपनी, हिंदुस्तान लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप, ये अलग अलग ऑप्शन देता है. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिल्ली मैंने पहले ही डाल दिया था. देन इट आस्क फॉर द सेक्टर और एंड द सेंट्रल डिविजन. सेक्टर मींस कि वो वेट अथॉरिटी में पहले कौन से सेक्टर में आता था, डोमेस्टिक सेल टैक्स की कौन सी अथॉरिटी में आता है, और सेंट्रल जुडिक्शन मींस कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी जुडिक्शन में आता है. दोनों की अलग अलग जुडिक्शंस बनी हुई हैं, बट आज के दिन आप करंटली जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो सेक्टर का मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो प्रैक्टिकली लोग क्या कर रहे हैं, दैट व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज यू, कि वो सेंट्रल दिल्ली का कोई भी रजिस्ट्रेशन डाल रहे हैं एज ऑन डेट, व्हाट आई एम सेइंग टू यू. बट आप कोई रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो प्लीज उस रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अपना वार्ड या सेंटर का सर्कल चेक करवा लीजिए. गवर्नमेंट की साइट पे अगर मिलता है, दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे मिल रहा है, ठीक है, अदरवाइज दिल्ली सेल्स टैक्स से चेक करवाना पड़ेगा. बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन टुडे सिनेरियो आर पुटिंग इट अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, दे आर नॉट चेकिंग इट फ्रॉम एनी एल्स. सेंटर जुडिक्शन में ये आपको प्रॉपरली एक्यूरेटली चेक करके डालनी है कि आपका बिजनेस कौन से एरिया में फॉल करता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं यहाँ पर लिंक पे क्लिक करूंगा तो दिस विल गिव यू मी टू अनदर साइट. ये एक पेज वो आपके पास ओपन हो जाएगा नो योर जुडिक्शन का. नो योर जुडिक्शन प्रोवाइड्स कि आपका बिजनेस कौन से किस ऑफिसर के अंडर आता है, दैट यू हैव टू डिसाइड. हमने दिल्ली टाइप करा था, दिल्ली टाइप करा. दिल्ली के अंदर आपका बिजनेस किस कमिश्नरेट के अंदर आता है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. जैसे ही आप दिल्ली ईस्ट ओपन करेंगे, लेट्स से एग्जांपल गांधीनगर, मयूरविहार, अलग अलग एरिया शो करेगा. दिल्ली वेस्ट, जनकपुरी, जगकीर्ति नगर, ये अलग अलग एरिया. मुंडका, अगर लेट्स से आप मुंडका ओपन करते हैं, देन मुंडका के अंदर कि आप कौन से रेंज में फॉल करते हैं. यू हैव टू सी योर एरिया वेरी केयरफुली बिफोर अप्लाइंग दिस, बिकॉज रॉन्ग एरिया सिलेक्शन will lead to the cancellation of the registration. As an example, I am typing Mundka. Let's take an example. My range falls 112. Range 112. My business is going to fall in Rohini sector 2. So what I will do, I am in Delhi. I will go in the application. I will first type here where it was Delhi West. You see, it falls in the Delhi West, Mundka. I will type Delhi West. It will give you the list Mundka. Then range number. Let's check it 112. आपको अपना एरिया चेक करना है, देन आपको एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग डालनी है. आर यू अप्लाइंग फॉर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? नो, वो आप मैंने बताया जैसे एग्जीबिशन के लिए किसी 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं तो उसके लिए होता है. एंड कंपोजिशन स्कीम एक अलग से स्कीम होती है, दैट वी विल सी हम करेंगे, जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती है. हम ये दोनों ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं. देन इट आस्क फॉर रीजन टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन. फर्स्ट ऑप्शन बोलता है क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, इंटरस्टेट सप्लाई, लाइबिलिटी टू पे एज अ रिसिपेंट मींस रिवर्स चार्ज जो हमने बात करी थी, एंड ट्रांसफर सक्सेशन चेंज इन, काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड करता है. 90% ऑफ द सिचुएशन में क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड और वॉलंटरी बेसिस पे. वॉलंटरी मींस मेरा बिजनेस थ्रेशोल्ड से कम करता है बट स्टिल मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, अपने लिए ले रहा हूँ, तो आप इनमें से एक सप्लायर सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड कर लिया. क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड करते ही आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ था, लेट्स टेक एग्जांपल मेरा बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था. डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू टैक्स अराइज, मतलब आपकी थ्रेशोल्ड किस दिन इंक्रीज हुई है वो वाला डेट ये पूछ रहा है. फॉर एग्जांपल मेरी थ्रेशोल्ड कल इंक्रीज हुआ है, तो ये 22 तारीख को मैंने यहाँ पर डेट ऑफ लाइबिलिटी डाल दिया.
उसके बाद ये पूछेगा कि इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन हमारे पास कंपनीज के केस में जनरली कंपनीज का सिन नंबर होता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो हमें यहाँ पर डालना होता है। एलएलपीज के केस में एलएलपीज का डालना होता है। रेस्ट हमारे पास जनरली अप्लाई नहीं होते, क्योंकि बाकी सब एंटरटेनमेंट टैक्स मूवीज वालों के लिए अप्लाई करता है, और या फिर हमारे क्या कहते हैं पेट्रोल एंड डीजल कंपनीज के लिए अप्लाई करता है, तो होटल एंड के लिए भी करता है। जनरली ये केसेस सिनेरियो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं रहता, तो वी विल लीव इट ब्लैंक, वी विल सेव द एप्लीकेशन हियर एंड मूव इट। यहाँ ये पूछेगा आपका फर्स्ट नेम, या आपने स्टार्टिंग में पैन नंबर से पिक कर लेगा। फादर्स नेम पूछेगा, योर करंट डेट ऑफ बर्थ, आइए मैं कुछ भी डाल देता हूँ इसमें। योर मोबाइल नंबर, प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली, यहाँ जो मोबाइल नंबर डालना है ये ओनर ऑफ द बिजनेस का डालना है, बिकॉज ये प्रोप्राइटर की डिटेल्स डाल रहे हैं, नॉट द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू साइन द रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ओनर का मोबाइल नंबर डाल दिया और एक ईमेल आईडी डाल दी। जेंडर यू हैव टू टाइप, please stop me where you find any difficulty na, I will stop there and explain you. Designation, I am a proprietor. यहाँ पर ही आपसे आधार नंबर भी पूछ रहा है, तो आधार नंबर भी आपको डालना होगा वहां पर। पैन नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालना होगा। यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, देन आपका रेजिडेंशियल एड्रेस डालेंगे कि आप ओनर का रेजिडेंशियल एड्रेस, नॉट द बिजनेस का एड्रेस, दिस विल बी द एड्रेस वेयर द ओनर रिसाइड्स। देन यू हैव टू अटैच द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको कोई हार्ड कॉपी में कुछ नहीं लगाना होता, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सैंपल आपके लिए कलेक्ट करके रखा हुआ है, मैंने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दैट शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, उसको यहाँ पर कलेक्ट करा, दिस फोटो हैज गॉट अटैच्ड हियर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, मीन्स जो ओनर है वही हर बार रिटर्न साइन करेगा या कोई और पर्सन ऑथराइज कर रहा है। तो ये जनरली बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑथराइज सिग्नेटरी अलग होते हैं, अदरवाइज ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी जो ओनर होते हैं वही रिटर्न साइन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं येस पे, दिस इज अ बटन टू गिव येस। जैसे ही ये ग्रीन हो गया, इट मीन्स यू हैव गिवन टू द डिपार्टमेंट कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर दी है, द सेम पर्सन इज गोइंग टू फाइल द रिटर्न्स एवरी मंथ। ये आधार कार्ड इज शोइंग बिट रॉन्ग, just let me try now. Give me 1 second. जैसे कोई करेक्ट आधार कार्ड नंबर डालेगा तो यहाँ पर एक टैब ओपन हो जाएगा विच सेज जो इस आधार में डिटेल्स हैं
क्या वो जीएसटी डिपार्टमेंट उस डिटेल को ऑब्टेन आधार इज नॉट मैंडेटरी, यस आधार इज नॉट मैंडेटरी, बट बेटरमेंट ऑफ आधार की आप लास्ट में बाद में रिटर्न अपनी साइन करने में हेल्प करता है, एंड रिटर्न से आपकी डिटेल्स भी जल्दी कंफर्म हो जाती है। मैंडेटरी नहीं है, इट इज यस यू आर ट्रू, बट इट इज ऑलवेज इन बेटर टू गिव द डिटेल्स। An alphabet is there in Aadhaar number? No, there is no alphabet in Aadhaar number. I have given the number. जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको टिक कर दिया तो आई हैव गिवन द अथॉरिटी टू जीएसटी डिपार्टमेंट कि वो डिटेल्स को मेरी वैलिडेट करा ले आधार के रिकॉर्ड से आल्सो, व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू साइन फॉर द हेल्प, इट हेल्प्स इन साइनिंग द रिटर्न लेटर ऑन। इफ ऑथराइज सिग्नेटरी समवन एल्स देन यू कैन टाइप इट, जस्ट नो कर दीजिए। नो करेंगे तो यू विल फाइंड यहाँ पर एक ऑथराइज सिग्नेटरी का टैब भी आता है। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे तो ऑथराइज सिग्नेटरी का टैब भी ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने नो करा हुआ है तो ऑथराइज सिग्नेटरी का टैब नेक्स्ट ऑथराइज सिग्नेटरी का टैब ओपन हो गया है। देन अगेन आप यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल देंगे। फर्स्ट नेम क्या है, दो पर्सन हु इज लायबल टू साइन द फाइल द रिटर्न्स, उनकी डिटेल्स, सेम डिटेल्स पैन कार्ड आधार कार्ड उसका भी आएगा यहाँ पर, उनके भी फोटो लगेंगे। बट इन आर केस वी आर टेकिंग कि जो ओनर है वही रिटर्न फाइल करेंगे, तो हमारे केस में हम इसको यस कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ऑथराइज सिग्नेटरी में भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप एक से ज्यादा पर्सन को रिटर्न फाइलिंग के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक डिटेल्स तो आपने यस कर दिया, वहां से आ गई, बट दोबारा कोई ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन एडिट अगेन। यू हैव टू नोट वन पॉइंट कि एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको ये क्लिक करना होगा कि ये प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, बाकी और भी सिग्नेटरी आप बना सकते हैं। यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। डू यू हैव एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जनरली फॉरेन बिजनेसेस के लिए होता है, यहाँ पर हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इट आस्क फॉर द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, द प्लेस जहां से आप बिजनेस एक्चुअली में करेंगे। मैं डमी एड्रेस डाल रहा हूँ इसके अंदर। डमी एड्रेस डालने के बाद इट विल आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स कि प्रॉपर्टी आपकी कंसेंट पे होती है, लीज पे होती है, ओन होती है, रेंट पे होती है, शेयर्ड होती है या अदर्स है कोई है। जनरली हमारे यहाँ ओन्ड होती है या रेंट पे होती है, जनरली ये टर्म्स यूज होती है। लीज भी हम इसको लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, इसको लीज पे बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने प्लेस जिससे बिजनेस करना चाह रहा हूँ मेरी रेंटेड पे है, तो मैं इस पर रेंट पे क्लिक करूंगा और इसमें लगाऊंगा अपना रेंट एंड लीज एग्रीमेंट। चूज फाइल पे क्लिक करूंगा और रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर लगा दूंगा। टाइम वाइट इज टाइम माइट बी दैट फाइल इज करप्ट। सो इस तरह से रेंट एग्रीमेंट लग जाता है इसमें। साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना भी कंपलसरी है। फिर वो बताना पूछेगा आपसे कि आप इस प्लेस से क्या बिजनेस करेंगे। ये आपका वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, रिटेल बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इंपोर्ट है, ईओयू है, सेल्स ऑफिस है, वेयर हाउस है, या क्या चीज आप यहाँ से करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मेरा लेट्स टेक एग्जांपल ये सेल्स ऑफिस, मैंने सेल्स ऑफिस क्लिक कर दिया। नेक्स्ट इट आस्क फॉर द हैव यू हैव एनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का होता है कि क्या आप जिस स्टेट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं
उस स्टेट में कहीं और से भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपने एक एड्रेस तो बता दिया कि मेरा लेट्स से मेरा सेल्स ऑफिस तो ये है, लेकिन पीछे मेरा गोडाउन भी है, गोडाउन का एड्रेस तो आपने दिया नहीं। तो अगर आपको गोडाउन का एड्रेस भी देना है तो हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो एक टैब आगे जाके ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल फिल करी थी, यहाँ पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये रोड स्ट्रीट पूछ रहा है, वो हम डालना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्लिक करा तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो पूछेगा कितने नंबर ऑफ एडिशनल प्लेसेस हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं 1 प्लेस करता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ तो अगेन वो एड्रेस पूछ लेगा उसका। डमी अगेन आई एम डंपिंग। नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस, प्लीज नोट इट हियर। एडिशनल प्लेस के लिए कोई प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको बताना पड़ता है कि आप वहां से वो रेंटेड है या ओन्ड है, बट वो पेपर नहीं मांगेगा आपसे, पेपर सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस के ही मांगता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप सिलेक्ट करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मेरा वेयर हाउस है तो मैं वेयर हाउस पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड आ गया, एडिशनल प्लेस 102 डीएस दिल्ली, मेरा एड्रेस आ गया। कंटिन्यू करूंगा। मैंने आपको बताया था ये गुड्स एंड सर्विसेज पूछता है कि आप किस गुड्स में और किस सर्विसेज में डील करते हैं। फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, उन्होंने सभी गुड्स के लिए एक नंबर अलॉट करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मिल्क को कुछ बोलते हैं लेकिन बाहर कंट्री में मिल्क को कुछ और बोलते थे, बट लेकिन चीज एक है। तो वहां के निमोनिक्स, वहां की टर्मिनोलॉजी कुछ अलग थी और इंडिया की टर्मिनोलॉजी कुछ अलग थी। तो व्हाट ऑल द कंट्रीज हैव डिसाइडेड, दोनों ने सभी ने एक नंबर दे दिया हर एक प्रोडक्ट को, और उन्होंने बोला कि ये नंबर हरदम सेम रहेगा ऑल ओवर द ग्लोब, चाहे वो प्रोडक्ट आप नाम किसी भी नाम से बुला लें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मेडिसिन 3004 में आती है, अगर बाहर मेडिसिन को कुछ और भी बोलते हैं बट वो नंबर उसको 3004 ही देंगे। तो यहाँ पर आपसे वो उस नंबर को पूछेगा, नंबर बोलते हैं एचएसएन को, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज मींस वो सभी जगह हार्मनी है, सेम है, सिस्टम है, एक सिस्टम से बना हुआ है। नोमेनक्लेचर मींस एक आइडेंटिफिकेशन का नाम क्या है, ऐसा नाम का सिस्टम हार्मोनाइज सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, मेडिसिन में मैं डील करता हूँ तो इट कम्स इन 3004 मेडिसिमेंट्स। यू कैन गिव मैक्सिमम 5 थिंग्स हियर, कोई भी 5 चीजें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ सर्विसेज में डील करता हूँ 9965। ओके, सॉरी, एक्चुअली सर्विसेज के लिए ये टैब अलग से है यहाँ पर। तो सिमिलरली गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपको एचएसएन नंबर डालना होगा। एचएसएन नंबर गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करे हुए हैं, यू विल गेट दैट लिस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस आई कैन लेट यू वन थिंग, सर्विसेज के जितने भी नंबर होते हैं वो 99 से स्टार्ट होते हैं और गुड्स के नंबर 01 से स्टार्ट होके 998 तक जाते हैं। प्लीज म्यूट द माइक, आई डोंट नो व्हाट्स। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी आपसे मांग सकता है। जस्ट वेट अ मिनट। गुड्स आई नंबर कहाँ से आता है? गुड्स आई नंबर मींस, मान्य, आई डोंट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से। नंबर जो होते हैं वो नोटिफिकेशन में होते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आपको नोट करना है तो। नोटिफिकेशन नंबर 1/2007 सीजीएसटी रेट्स, वहां पर सारे नंबर्स गिवन है।
कंटिन्यूइंग फर्दर, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल टैक्स, कुछ स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स एज अ पार्ट एक इनडायरेक्ट टैक्स की तरह। गुड्स के नंबर 01 से स्टार्ट होके 98 तक जाते हैं, नंबर 01001 ऐसे स्टार्ट होके 98 तक जाते हैं, स्टार्टिंग 2 डिजिट आई एम टेलिंग यू, एंड सर्विसेज के नंबर 99 से ही स्टार्ट होते हैं, ये नंबर 8 डिजिट तक होते हैं, 01000001 010002 इस तरह से होते होते 984699 यहाँ तक ये नंबर फॉल करते हैं। सर्विसेज के नंबर 99690 से स्टार्ट होकर 99 लास्ट में 699 तक फॉल कर सकते हैं, एनीथिंग। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन, साउथ की कुछ स्टेट्स होती हैं वहां पर प्रोफेशनल टैक्स आज भी एप्लीकेबल होता है। अगर कुछ नंबर्स हैं आपके पास, स्टेट एक्साइज पेट्रोल या डीजल पे एक्साइज लगता है तो उनके लाइसेंसेस हैं तो वो उसकी डिटेल देनी होती है। रेस्ट आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यू जस्ट नीड टू टिक द चेक बॉक्स की जितनी भी डिटेल्स मैंने प्रोवाइडेड है वो सही है। नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, एंटर द प्लेस जहां से आप साइन कर रहे हैं। ये करने के बाद लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर दिल्ली डाल देता हूँ और ये टिक कर देता हूँ। तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा कि आपको डिजिटल सिग्नेचर से रिटर्न फॉर्म फिल सबमिट करना है, सबमिट विद ई सिग्नेचर, सबमिट विद ईवीसी। ई सिग्नेचर आई हैव टू चेक, अभी रिसेंटली आया है जस्ट ये 15 डेज बैक, एंड ईवीसी का ऑप्शन ओटीपी के थ्रू। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे ओटीपी आएगा, जिस पे भी क्लिक करेंगे अगर ईवीसी के थ्रू करेंगे, फाइल करते ही नंबर लिखते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। You have to fill the details in all the tab, business details, you have to fill partners detail, you have to fill authorized signatory detail, authorized representative generally applicable in the case of foreign company, principal place जहां से आप मेन बिजनेस करना चाहते हैं, एडिशनल प्लेस कोई और उसी स्टेट में अगर है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, प्रोफेशनल टैक्स रिलेटेड एक्साइज रिलेटेड डिटेल्स, वेरिफिकेशन इन साइनिंग, दिस ऑल वी हैव इन द रजिस्ट्रेशन पार्ट। If anyone have query till here, please let me know. I would like to hear from everyone, please. This will help me to go ahead. I got your query. Why use HSN code different for each other, like 2 digit or 4 digit? I haven't got your query. 2 digit or 4 digit. मिनिमम गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब्ड है कि आप कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज करेंगे तो 4 डिजिट HSN आपको लिखना होगा। 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर का नोटिफिकेशन, एक्चुअल लॉ की बात करता हूँ तो इट सेज 1.5 करोड़ तक जिसका बिजनेस है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज एनी HSN। above 5 crore, above 1.5 cr, up to 5 cr it is, I think so what I remember last is 2 digit HSN, and above 2 digit, above 5 crore companies are mandatory required to follow 4 digit HSN। ऐसा क्यों है? बिकॉज क्लासिफिकेशन इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल एंड क्रोसिन माइट दोनों 330 में तो फॉल करती हैं, बट एक 3004 में फॉल करती है, एक 3002 में फॉल करती है, तो उसकी क्लासिफिकेशन इशू ना आए, लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये 2 डिजिट या 4 डिजिट का कंसेप्ट दिया हुआ है, जस्ट टू हैव इजीनेस फॉर द बिजनेसेस। आई एम गोइंग अहेड, जो हमने करा है प्रैक्टिकली उसी को मैं जस्ट यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। yes, whenever your trading item changes, your HSN automatically gets changed. You can update it anytime on the GST portal also. आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, because every HSN have once the item is changed, HSN is gets changed automatically. आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने फर्स्ट उसमें,
for I'm getting the queries. Let me first revert the queries. Aniket is asking if I change the trading item, then should I need to change my HSN also? अभी हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट अंडर जीएसटी. वहां पर क्या होता है, आपको जब भी कुछ सेल करते हैं टैक्स इनवॉइस क्रिएट करना होता है. टैक्स इनवॉइस क्रिएट करना होता है तो उसके ऊपर एचएसएन मेंशन करना जरूरी होता है कि किस आइटम में आप डील कर रहे हैं. जैसे ही आप उस आइटम को चेंज करेंगे तो आपको वो इनवॉइस के ऊपर जो एचएसएन है वो नंबर भी आपको दूसरा नंबर लिखना पड़ेगा, नॉट द अर्लियर वन. सेकेंड थिंग, जीएसटी पोर्टल पे क्या चेंज, रजिस्ट्रेशन में चेंज करवाने की जरूरत है. अगर आपके पोर्टल पे 5 HSN कंप्लीट नहीं हो रखे हैं और लेस देन 5 आपने दिए हुए हैं, देन आपको वो ऐड वहां पर करवाना कंपल्सरी है. लेकिन आपके 5 या उससे ज्यादा हैं, ऑलरेडी 5 दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर चेंज करा पोर्टल पे चेंज कराने की जरूरत नहीं है. एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू एनी ऑफ द अथॉरिटी. यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर बिजनेस just by mentioning the new HSN number on the new in the invoice. Hope it is clear now. Fine, I'm going ahead. So visit www.gst.gov.in. विजिट करने के बाद अंडर द न्यू रजिस्ट्रेशन टैब प्रोवाइड पैन कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड जनरेट द TRN नंबर. TRN number is valid for the 15 days. Log in using the TRN number and file the registration form. Fill the registration form. After filling the form, please listen it carefully. Submit the application using ABC or DSC. Once the details are verified, जैसे ही हम वहां पर DSC से एप्लीकेशन या OTP से एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो एप्लीकेशन फाइल करने के विद इन 20 to 25 मिनट्स आपके पास एक ARN नंबर जनरेट होकर आएगा. एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपके मेल पे आएगा कि आपकी एप्लीकेशन की सारी डिटेल सबमिट हो गई है सक्सेसफुली, और ये नंबर आपके लिए हेल्पफुल है फॉर फर्दर ट्रैकिंग द एप्लीकेशन. वो ARN नंबर भी 15 डिजिट का होता है. आप उससे एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की कहां पहुंची है. हाउ टू चेक दैट प्रोसेस? जी, सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का आता है. आपकी जैसी एप्लीकेशन फाइल होगी वो ARN नंबर आएगा. ARN नंबर आप यहाँ डालेंगे और सर्च करेंगे तो वो ऑप्शन दिखा देगा कि ये एप्लीकेशन अभी कहाँ पर है और क्यों, बेसिकली किस लेवल पे है. एज पर GST लॉ विद इन 3 वर्किंग डेज आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा. अगर वो अप्रूव नहीं होता और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ईमेल नहीं आता है तो इट विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, कि वो मान लिया जाएगा कि वो अप्रूव हो चुका है. लेकिन जनरली 3 दिन में या तो अप्रूव हो जाता है. आज तक अभी तो आफ्टर बिगिनिंग ऑफ GST आई हैवंट सीन एनी प्रैक्टिकल केस कि 3 दिन में रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुआ है. या तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है या फिर कोई पेपर में प्रॉब्लम होती है तो डिपार्टमेंट आपको एक मेल पे नोटिस देता है कि आपके पेपर्स में ये प्रॉब्लम है, प्लीज रीफाइल कर दीजिए एप्लीकेशन को विद न्यू पेपर्स, जो रिक्वायर्ड पेपर है. उसके बाद आपका एप्लीकेशन दोबारा डिटेल्स आ जाएंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा. इट विल टेक अनदर 3 to 4 days कि वो नंबर आने में. Hope it is clear till now. I have one query of Aniket that I will revert. By that time, if you have also any query, you can just type it on the chat box. Aniket want to ask. Yes, yes, your query is very correct. Ki portal asks for the 4-digit and the 5-digit code, but law does not allow that. There is some gap between the law and the portal. पोर्टल में 5 डिजिट या 4 डिजिट वो HSN मांगता ही है टू राइट इट देयर, बट लॉ डज नॉट रिक्वायर दैट. बट दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें 4 to 5 डिजिट्स और गुड्स या सर्विसेज की आइडेंटिफाई करनी होती है जब भी हम पोर्टल पे वो डाल पाते हैं. फॉर योर sake of information,
सर्विसेज के केस में ही वो जनरली 4 से ज्यादा डिजिट्स मांगता है, बट गुड्स के केस में 4 डिजिट तक टोटल एक्सेप्ट कर लेता है। सर्विसेज के केस में 5 या 6 डिजिट में मांग लेता है, जो आपको वहां पर डालनी होती है। एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी जो रिटर्न्स एज ऑफ नाउ जीएसटी में जाती हैं, वहां पर 4 डिजिट एचएसएन की ही मैंडेटरी है। बट गोइंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू रिटर्न फॉर्मेट्स व्हिच इज मोस्ट प्रोबेबली कमिंग फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो उसके अंदर सर्विसेज के लिए दे हैव मैंडेटरी 6 डिजिट मैंडेट कर दिया है। सर्विसेज 6 डिजिट होंगी ही होंगी। गुड्स दे हैव केप्ट इट टू 4 डिजिट ओनली। Till now, here, if you have any issue, then please revert Zoom chat box. Aniket, your problem is resolved, then please revert. If you still have any doubt, please write. I'm just waiting for 1 more minute because I want to conclude this part of registration. I'm moving ahead. Once the registration is approved, you will get an email from the GST department that your registration is approved. Your user ID is this, your password is this. जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं उन यूजर आईडी पासवर्ड से, तो नॉर्मल लॉगिन नहीं होता उसमें। लॉगिन पे जाएंगे वहां पर आप, तो यहाँ ऑप्शन आता है फर्स्ट टाइम लॉगिन का। इफ यू आर लॉगिंग इन द फर्स्ट टाइम, क्लिक हियर टू लॉगिन। यहाँ क्लिक करेंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो वो आपको पासवर्ड चेंज करने का पिंग करेगा। जैसे ही आप पासवर्ड चेंज कर देंगे तो आपको वो नॉर्मल नया पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपकी डिटेल्स यूनिक हो जाएंगी। जैसे ही आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो वहां पर डाउनलोड्स के अंदर यूजर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकल के आ जाएगा, जिसके अंदर आपको अपना 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर इज ऑलवेज देयर विन 15 डिजिट, और 15 डिजिट में हर एक डिजिट का एक अपना मतलब होता है, which has been given there on the slide for your easy identification. जो फर्स्ट 2 डिजिट होती हैं वो स्टेट कोड बताती हैं। स्टेट कोड मतलब क्या होता है, जीएसटी के अंदर हर एक स्टेट को एक अपना कोड दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 01 फॉर जम्मू कश्मीर, 07 फॉर दिल्ली, 06 फॉर हरियाणा। एज लाइक 38 कोड है आज के दिन इंडिया में। द न्यू लास्ट कोड जो आया है वो लद्दाख का आया है। जब जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हुआ था, 38 कोड हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर द लद्दाख। अगर मैं कोई लद्दाख में रजिस्ट्रेशन लेता हूँ तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 38। उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट इज अ पैन नंबर, ये पैन नंबर होता है। उसके बाद 13 डिजिट होते हैं नंबर फॉर्म में, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 इंडिकेट्स कि उस स्टेट में आपका ये कौन सा रजिस्ट्रेशन है। इफ इट इज 1 मींस 22nd स्टेट में आपका ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। इफ इट इज 2 मींस 22nd स्टेट में आपका ये सेकंड रजिस्ट्रेशन है। 14 डिजिट इज दी जेड। ये ऑलमोस्ट सभी स्टेट में, सभी पैन में जेड ही होता है। ये बाय डिफॉल्ट है, नो वन कैन चेंज इट एंड इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू सम एल्गोरिथम फंक्शंस दे आर यूजिंग। लास्ट इज चेक सम डिजिट, it can be anything, it is default generated by the system, no one can identify it, no one can decide it, it is decided by the government, it is decided by the IT system. So this is all we have about the GST registration process. Now we are completing, we have ended with our GST registration. Hope it is very much clear किसको registration चाहिए होता है, registration होता कैसे है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर से आइडेंटिफाई कैसे होता है चीजें। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। Someone is using, I don't know what's this. सर अगर हमारे एक पेन पे 3 रजिस्ट्रेशन है तो 1 की जगह 3 होगा। अगर एक स्टेट में है तो
एक पेन में अगर दूसरी स्टेट में मेरा हरियाणा में है, दिल्ली में है और पंजाब में है, तो हर तीनों रजिस्ट्रेशन में 1 होगा। बट लेट्स से हरियाणा में ही मेरे तीनों रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्टर में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3rd। सर एक बार और समझा दीजिए वाला प्लीज, एंटिटी नंबर ऑफ सेम पेन वाला। 1 2 3, दिस इज व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड? मतलब यहाँ पे 1 जो है ये हाँ। इस पेन पे एक ही रजिस्ट्रेशन इसलिए 1 है। नो, इस स्टेट में एक नंबर रजिस्ट्रेशन है। इस स्टेट में जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है, दैट इंडिकेट स्टेट कोड, कि इस स्टेट में 22 इज फॉर छत्तीसगढ़, व्हाट आई रिमेंबर इज छत्तीसगढ़ के अंदर ये पहला रजिस्ट्रेशन है। हरियाणा के अंदर आपके और भी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, वहां पर भी 1 ही आएगा जब तक हरियाणा में पहला रजिस्ट्रेशन होगा। क्या आई गॉट इट। सर इफ वी हैव रजिस्टर्ड and not filing any return, then what is the application? For returns part we will discuss later on. Returns we will discuss separately, we have a separate session for that. I'm going ahead, hope all your queries are resolved. If you still have, you can type it or WhatsApp us. और सर जो ये चेक सम डिजिट वाला है ये बाय डिफॉल्ट ही आता है। By system, no one is responsible, no one can manually interfere that. Please mute your mic in case your queries are resolved. Let me help you with going ahead. Thank you. I'm proceeding further. This is again a very important topic, forward charge and reverse charge. GST में जितने भी टॉपिक होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, because they all have a practical interference. And specific looking over our course of 5 days, जितने भी टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डेली डे टू डे लाइफ में 100% यूज होंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो यूज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस रिवर्स चार्ज। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट डे जो हमने स्टडी करा था जीएसटी का? मैंने आपको यही पिक्चर दिखाई थी। रिटेलर होता है, प्लीज कंसंट्रेट एवरीवन हियर, रिटेलर होता है, कंज्यूमर होता है। रिटेलर गुड्स सेल करता है, गुड्स के बदले 100 रुपीज का उसको सेल वैल्यू होता है, 18% का जीएसटी लगाता है, 18 कंज्यूमर उसको 118 रुपए रिटेलर को पे करता है। 18 रुपए रिटेलर इज रिक्वायर्ड टू पे टू द गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑन द फर्स्ट डे, एंड इट इज प्रैक्टिकली हैपनिंग कि वो 118 रुपए कंज्यूमर पे करेगा रिटेलर को और 18 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराएगा रिटेलर। आई हैव जस्ट नॉट कैप्चर्ड वन पॉइंट हियर कि 18 रुपए की बजाय वो 18 में से कम कराएगा आफ्टर यूटिलाइजिंग द आईटीसी अवेलेबल विद देम। बट इन माय एग्जांपल आई एम टेकिंग अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो आईटीसी। इन सच अ सिचुएशन जो 18 के रुपए वो जीएसटी के पूरे कलेक्ट हुए तो 18 के 18 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, FCM. 90% of the Indian businesses operate on this model only, forward charge mechanism. But government have felt one difficulty. कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर अनऑर्गेनाइज बिजनेस होता था। अनऑर्गेनाइज बिजनेस होने की वजह से गवर्नमेंट को उसका टैक्स कलेक्शन नहीं मिलता था एंड इवेजन ऑफ टैक्स होना स्टार्ट हो गया था, मतलब टैक्स की चोरी होनी स्टार्ट हो गई थी। टैक्स की चोरी को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म निकाल के लाई, नया मैकेनिज्म बिल्कुल, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सब कुछ उल्टा हो गया है गवर्नमेंट के लिए, सब कुछ उल्टा हो गया गवर्नमेंट के लिए, ओनली फॉर द एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, जस्ट लुक एट विद मी, रिटेलर ने गुड सेल करे 100 प्लस 18, 118 रुपीज, 18 रुपीज जीएसटी के साथ। कंज्यूमर ने बोला, कंज्यूमर को बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को बोला अगर आप ऐसी कोई गुड्स या सर्विसेज
लेते हैं जिसको हमने आरसीएम में कवर करा हुआ है। गवर्नमेंट की लिस्ट दी हुई है कि ऐसे गुड्स की और ऐसी सर्विस की जो आरसीएम में कवर होती है। अगर आप ऐसी कोई गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा होगा वो आप रिटेलर को नहीं पे करेंगे, वो टैक्स आप डायरेक्टली हमें पे करेंगे। व्हाट इज हैपनिंग, आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही इज बाइंग कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स के ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट से कैश्यू नट्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना होता है। अगर मैंने कैश्यू नट्स परचेज करे हैं, 5% जीएसटी रेट है कैश्यू नट पे, 105 रुपए का लेट्स से एग्जाम इनवॉइस देगा ये कंज्यूमर को। कंज्यूमर बोलेगा नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट ने मुझे क्लियरली बताया हुआ है, मैं आपको सिर्फ 100 रुपए जमा कराऊंगा और 5 रुपए मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा, बिकॉज गवर्नमेंट हैज क्लियरली टोल्ड मी कि ऐसी गुड्स, ऐसी सर्विसेज जिसके ऊपर मैंने स्पेसिफाई करा हुआ है, अगर वो स्पेसिफाइड लिस्ट में फॉल करता है तो उसका टैक्स आप मुझे देंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द रिटेलर और टू द परचेजिंग पार्टी। दिस इज कॉल्ड ए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टैक्स being directly paid by the buying party instead of selling party. Buying party will directly deposit the tax to the government instead of selling party depositing into the government. I have captured here below. हमारे केसेस में क्या होता है, जनरली प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट हैव गिवन अराउंड 10 to 12 गुड्स के आइटम एंड अराउंड 10 सर्विसेज के आइटम। 10 आइटम जिसके ऊपर गुड्स के अंदर हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है एंड अप्रोक्सीमेटली 10 सर्विसेज जिस पे रिवर्स चार्ज में हमें टैक्स पे करना होता है। गुड्स ऐसे जनरली बहुत कम होते हैं बट सर्विसेज ऐसी जनरली डेली बेसिस पे हमारे यूज में आती है। तो आई हैव कैप्चर्ड हियर द लिस्ट ऑफ सर्विसेज जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे होता है। आई एम डिस्कसिंग द सर्विस वन बाय वन, प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली। ये आपको डेली पर्पस लाइफ में यूज होगी एंड आपसे पूछा भी जाएगा कि आरसीएम और एफसीएम में डिफरेंस क्या होता है और एफसीएम होता क्या है, आरसीएम क्या होता है। I have few sets of questions also on this which will help you to understand the topic in more brighter way. फर्स्ट सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, जीटीए सर्विसेज। आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली है। मैं नेस्ले हूं, नेस्ले का मटेरियल मंगवाया, अपने पार्टी असम में लोकेटेड पार्टी थी, असम वाली पार्टी को बोला कि ये मटेरियल मेरे पास भेज दो। असम वाली पार्टी बोलती है सर आप एक करो, मटेरियल मेरे पास तैयार रखा है, अब ट्रक हायर कर लो, ट्रक हायर करके अपना मटेरियल मंगा लो। नेस्ले ने ट्रक वाले की पेमेंट करी, ट्रक वाले की पेमेंट करी तो वो क्या हुआ, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज नेस्ले ने ली है। ट्रांसपोर्टर बिल रेस करेगा नेस्ले के ऊपर। जब नेस्ले उसको पेमेंट करने जाएगा तो उसको जीएसटी की पेमेंट नहीं करेगा। नेस्ले बोलेगा भैया रुक जाओ, आई विल नॉट पे यू जीएसटी, योर सर्विसेज आर क्लियरली मेंशन्ड अंडर द रिवर्स चार्ज लिस्ट, आई विल डिपॉजिट द टैक्स of your services directly to the government. If service provider is GTA and service recipient is person registered under GST, then he is directly required to deposit the tax to the government. इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आगे की रेस्ट ऑफ द सर्विसेज भी है। अगर आप किसी एडवोकेट की सर्विसेज लेते हैं, एडवोकेट का बिल आता है तो आपको उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज लेते हैं, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का मतलब होता है आपने रेडियो में अपना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रेडियो का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस तरह की सर्विसेज लेते हैं तो आपको टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। डायरेक्टर्स कोई कंपनी को सर्विस देते हैं, डायरेक्टर्स, एक रिसेंट में बहुत अच्छी रूलिंग भी आई है, वो कहती है कि डायरेक्टर कोई सर्विसेज देता है कंपनी को तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज कंपनी को डिपॉजिट करवाना होगा। रेंट अ कैब सर्विसेज, कंपनी से, लेट्स से कंपनी ने टूर एंड ट्रेवल्स की सर्विस ली है, टैक्सी स्टैंड से कोई गाड़ी हायर पे ली, गाड़ी वाले का बिल आया है, उस बिल के ऊपर रिवर्स चार्ज कंपनी को जमा करवाना होगा। मैंने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है, सर्विसेज कैसे इंपोर्ट होती है, मैंने कोई वेस्ट बंगाल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अमेरिका से सॉफ्टवेयर खरीदा है, अमेरिका से कोई मैंने कुछ सर्विसेज ली है, तो वो सर्विसेज सिंस वो पर्सन बाहर है इंडिया से, उसके ऊपर टैक्स वो कैसे जमा कराएगा, तो ये सर्विसेज के ऊपर टैक्स जो जमा कराना है वो इंडियन पर्सन जो लोकेटेड है, रिसिपिएंट है, वो जमा करवाएगा। सिक्योरिटी की सर्विसेज आप लेते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर अगर आप किसी सिक्योरिटी कंपनी से सर्विसेज लेते हैं
तो उसके ऊपर टैक्स आपको रिवर्स चार्ज में जमा करवाना होगा। दीज आर द मेजर एंड द डोमिनेंट लिस्ट। वो ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो डेली बेसिस में हमारे यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ आरबीआई की सर्विसेज हैं, कुछ गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, वो हमारे डेली पर्पस में इतनी यूज नहीं होती, तो दैट्स व्हाई आई हैवंट कवर्ड इट हियर, बट दीज सर्विसेज आर यूज ऑन डेली बेसिस। तो काफी काफी टाइम आपको रिमेंबर याद भी रखना होगा ये सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स जमा कराना होगा। आई एम जस्ट रिपीटिंग। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एडवोकेट का सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, डायरेक्टर सर्विसेज, रेंट अ कैब सर्विसेज, इंपोर्ट की सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज आप लेते हैं तो आपको टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। अब अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है कि टैक्स सर मैं कब टैक्स जमा कराऊं? इनवॉइस तो पार्टी ने पहले ही बना दिया था, इनवॉइस आया मेरे पास बाद में, या फिर कब आया है, मैं कब टैक्स जमा कराऊं उसके ऊपर? तो इसके लिए सेपरेटली टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हैं। टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस ये बोलते हैं, इनवॉइस की डेट है, इनवॉइस की डेट से गुड्स के केस में 30 डेज में और सर्विसेज के केस में 60 डेज में। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी की डेट है, 31 डे सर्विसेज के केस में 61 डे पे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। गुड्स के केस में 31 डे विल बी द डीम्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई। बट कई कई बार क्या होता है, इनवॉइस तो बाद में आता है, पेमेंट आप पहले कर देते हो, गवर्नमेंट कहेगी पेमेंट अगर आपने पहले कर दी तो प्लीज मेरा टैक्स भी जमा करवा दीजिए। सो अर्लीस्ट ऑफ द पेमेंट और द 31 डे फ्रॉम द इनवॉइस, 61 डे ऑफ द इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। 1 जनवरी का इनवॉइस है, सर्विसेज ले रहा हूँ, तो 2 मार्च विल बी डीम्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई। आई एम एज्यूमिंग दैट मैंने पेमेंट नहीं करी अभी तक। अगर मैंने कैश यूनिट्स परचेज करे हैं, 1 जनवरी का बिल है, तो 1 फरवरी, बिकॉज इट्स 30 डेज मंथ, तो 1 फरवरी वुड बी डीम्ड एज अ 31 जनवरी, और 1 फरवरी वुड बी डीम्ड एज अ मंथ जहां पर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई फॉलो करेगा, एज्यूमिंग दैट डेट ऑफ पेमेंट मैंने पेमेंट नहीं करी है। आई हैव गिवन वन एग्जांपल हियर, प्लीज लिसन इट। Messrs ABC in Private Limited undertook service of a director of Mr. X. Mr. X हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं ये। उनने 50,000 रुपए की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है 15 जनवरी को। जो इन्होंने इनवॉइस रेस करा है वो 1 फरवरी को रेस करा है, और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 1 मई को इसका पेमेंट करा है। सिंस द डायरेक्टर सर्विसेज आर स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, so ABC Limited is required to pay GST on it directly to the government. अब ABC लिमिट को कंफ्यूजन है कि वो टैक्स कब जमा कराए, 15 जनवरी को जब उसने सर्विस प्रोवाइड करी जब कराए, 1 फरवरी को जमा कराए जब उसने बिल रेज कराया, ये 1 मई को जब पेमेंट आई जब जमा कराए। गवर्नमेंट ने बोला अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट, फर्स्ट मैकेनिज्म, फर्स्ट पॉइंट, अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट 1 मई। नहीं नहीं नहीं, सेकेंड पॉइंट क्या था, 60th आफ्टर 60 डेज ऑफ द इनवॉइस डेट। 1 फरवरी इनवॉइस की डेट थी, 60 डेज फ्रॉम द 1 फरवरी it goes to 2nd April. 2nd April, earliest of the 2nd April or the 1st May will be deemed as the time of supply. In case of goods, it is 30 days. 31st day हम आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सिमिलरली सर्विस केस में 60 डेज। तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में 2nd अप्रैल। तो अप्रैल में 2nd अप्रैल को मान लिया गया कि एबीसी लिमिटेड को 2nd अप्रैल को इसकी लाइबिलिटी आ गई है इसके ऊपर टैक्स जमा करवाने की। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। Please read the question carefully and type your answers in the chat box. The question says, A ने कैश्यू नट्स 20,000 रुपए के मिस्टर बी को 1 जनवरी को सेल करने हैं। इनवॉइस की डेट 31 दिसंबर थी, पेमेंट उसकी 30 नवंबर को हो चुकी है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुआ? आई एम वेट गिविंग अ टाइम ऑफ अ मिनट, जस्ट थिंक इट एंड टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन द चैट बॉक्स।
Perfect. So I have received few of the answers, and I believe everyone is understanding the topic very clearly. So they have got it correctly. The answer is, sorry, there's some the answer is, your answer is correct. 30th November. I just have typo error here. I will correct in my slide. The answer is 30th November, since it is a date of payment, or the 31st day from the date of invoice. I will not show you the answer here because it is been wrongly mentioned. I will correct it. Hope everybody is clear till here. I am taking the last topic for the day. Interesting topic. A short brief of this export under GST. Just to give you a brief knowledge about export, what happens, what is actually export in India, what is the implication of export under GST. एक्सपोर्ट का मतलब तो होपफुली आप सभी लोग जानते हैं, ऐसी गुड्स सर्विसेज इंडिया से बाहर सेल करना, सिंपल लेमन लैंग्वेज. Date of payment is considered both in case of services and goods. A very good question. बट FCM में होता है तो डेट ऑफ पेमेंट वहां कंसिडर नहीं होती है, बट रिवर्स चार्ज वाले गुड्स के अंदर डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर होती है. एक्सपोर्ट अंडर GST, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दोनों चीजें हैं. गुड्स का भी एक्सपोर्ट हो सकता है, गुड्स को भी हम इंडिया से बाहर भेज सकते हैं, और सर्विसेज को भी हम एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर भेज सकते हैं. दोनों को इंडियन गवर्नमेंट ने डिफाइन करा हुआ है कि एक्सपोर्ट कब माने जाएगा. एक्सपोर्ट हम मानेंगे कब, कि कब एक्सपोर्ट एक्चुअली में हो गया है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हम आपको देंगे, वो सब एक्सपोर्ट के रूल्स में या फिर गवर्नमेंट के रूल्स में डिस्क्राइब्ड है. आई एम जस्ट टेकिंग आउट द ब्रीफ ऑफ द GST एक्सपोर्ट. Export of goods with grammatical variation and cognate expressions means taking goods out of a place to a place outside India. इंडिया से मटेरियल उठा के बाहर लेके जाने को एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं. सप्लायर है, इंडिया में है, रिसिपिएंट है, सिटिंग आउटसाइड इंडिया, ही इज सेंडिंग गुड्स फिजिकली सेंट आउट ऑफ इंडिया. प्लीज रिमेंबर द वर्ड फिजिकली. गुड्स फिजिकली बाहर जाने चाहिए. आपने रिसिपिएंट के कहने पे बिल टू शिप टू मॉडल कर दिया, रिसिपिएंट ने कहा बिलिंग मेरे नाम पे कर दो लेकिन मटेरियल इंडिया में ही दे दो, दैट वुडंट बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट. वो फिजिकली मूवमेंट भी बाहर का होना चाहिए. गुड्स, इफ द गुड्स हैव बीन गॉन फिजिकली आउटसाइड इंडिया, देन इट्स एन एक्सपोर्ट अंडर GST. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो बहुत आसान था, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे थे, पता करना बहुत आसान था कि एक्सपोर्ट हुआ है. बट गवर्नमेंट हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ ट्रबल व्हेन आइडेंटिफाइंग इन केस ऑफ सर्विसेज. अब सर्विसेज का कब पता चले कि सर्विसेज हमारी एक्सपोर्ट हुई है? तो सर्विसेज तो कहीं दिखती है नहीं, इट इज नॉट फिजिकली विजन फ्रॉम माय आईज. सो गवर्नमेंट हैव मेड 4 to 5 conditions. If those conditions are satisfied, then only a service could be treated as export. If any of the condition is not satisfied, any one of the condition is not satisfied, then the service couldn't be called as export of services. You have to satisfy all the 5 condition to call a service to be an exported service. What all these 5 conditions are, I am just reading out and explaining each one of the conditions. Please listen me very carefully. First condition says the supplier of service should be located in India. Supplier कौन होता है? सर्विस प्रोवाइड करने वाला. As alike in the case of goods, जो गुड्स की सप्लाई करता है वो इंडिया में ही होता है, जो सर्विस दे रहा है वो भी पर्सन इंडिया में होना चाहिए. पहली कंडीशन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड.
सेकंड केस सेज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जो सर्विस लेने वाला है, जैसे गुड्स लेने वाला था वो बाहर था, ऐसे सर्विस लेने वाला पर्सन भी बाहर होना चाहिए। तो इसलिए सेकंड कंडीशन सेज recipient of service should also located outside India. Third condition says the place of supply of services is outside India. Place of supply भी उसका बाहर होना चाहिए। यहां से एक चीज आपको माइंड में बड़ी क्लियर हो गई होगी कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई भी अलग अलग हो सकता है। रिसिपिएंट की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई भी अलग हो सकता है। तो एक्सपोर्ट क्लासिफाई करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई और रिसिपिएंट दोनों इंडिया से बाहर होने चाहिए। अगर दोनों इंडिया में है या फिर कोई एक इंडिया में है, then the service would not be classified as export under GST. The fourth condition is जो रिसिपिएंट उसकी पेमेंट करेगा वो फॉरेन करेंसी में करेगा, इंडियन रुपीस में उसकी पेमेंट नहीं आनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। कई बार काफी टाइम ऐसा होता है कि इंडियन रुपीज में वो पैसा आ जाता है, तो इंडियन रुपीज में अगर वो पैसा आ रहा है तो वो एक्सपोर्ट क्लासिफाई नहीं होगा, बिकॉज एक्सपोर्ट में कुछ बेनिफिट्स होते हैं। वो बेनिफिट्स लेने जब आप गवर्नमेंट के पास जाओगे तो दे विल आस्क योर फॉरेन बैंक रेमिटेंस सर्टिफिकेट्स, बीआरसीज बोलते हैं उनको, बैंक रेमिटेंस सर्टिफिकेट इजीली प्रूव कि वो पैसा कौन सी करेंसी में आपके पास आया है। तो वहां पर आपकी वो करेंसी जो है फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। एंड द लास्ट एंड द माइन्यूट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज वो सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। सेम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेम ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो सेम कंपनी नहीं होनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिट लोकेटेड इन लंडन, if ICICI Bank India is providing any services to ICICI Bank located in London, it will never be classified an export of services because they are a same organization. A branch of an Indian company is the same organization. Head office and branch services in between head office and branch could not be classified an export of services since they both are of same TAM, same company. But if anyone of you had idea of holding and subsidiary company, they both are of different companies, so they could be classified as subsidiary companies. I'm not going into deep of that holding company and subsidiary company. They both are separate companies. Supplier located in India, recipient located outside India, services provided outside India, amount paid by recipient in foreign currency. Very important, foreign currency. Place of supply should be outside India. Supplier, let's say ITC Maurya है, recipient लेट्स से लंदन का कोई चीफ मिनिस्टर आके, प्राइम मिनिस्टर आके आईटीसी मौर्य के एक होटल में रहता है मुंबई में, वो कहता है प्राइम मिनिस्टर मेरे लंदन के एड्रेस पे बिल बना दो, कहता है ओके जी, योर फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सप्लायर इज इन इंडिया, इट्स आईटीसी मौर्य, रिसिपिएंट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ लंदन, इज वो बिलिंग एड्रेस दे रहा है अपना लंदन का, ठीक है, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। द प्लेस ऑफ सप्लाई होटल की सर्विसेज है, होटल की सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी से लोकेटेड होती है, तो स्पेसिफिक लिस्ट में कवर्ड है जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी। जो सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां होती है दैट प्लेस विल बी डीम्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां आ गया? मुंबई में ही आ गया। जैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई में आ गया, services could not be classified as export of services, and the supplier and recipient should not be a same organization. For example, it should not be a head office and branch office. Hope it is clear to you all. So export under GST, what government mean to say कि अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो हम आपको एक बेनिफिट देंगे। अभी हमने ये समझ लिया एक्सपोर्ट किसे बोलते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? जब हम फिजिकली गुड्स इंडिया से बाहर भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट कब होती है? जब सर्विसेज की 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, सप्लायर, रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, फॉरेन करेंसी एंड नॉट अ सेम पर्सन, मींस नॉट अ एचओ एंड द बीओ। सरकार कहती है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपको बेनिफिट देंगे। बेनिफिट क्या देंगे? हम ये चाहते हैं कि आप बाहर मटेरियल ज्यादा से ज्यादा सेल करें इंडिया का। तो लोगों ने पूछा आप बेनिफिट कैसे देंगे? उन्होंने कहा हम ये नहीं चाहते कि आप टैक्सेस को एक्सपोर्ट करें,
आप सिर्फ मटेरियल को एक्सपोर्ट करें, जो आपको टैक्सेस उस आपके खर्चे में लग रहे हैं बनाने के लिए, हम आपको उसका रिफंड दे देंगे। सरकार ने पूछा, सर लोग बोल रहे वो क्या, वो रिफंड कैसे दोगे आप, पता कैसे चलेगा? सरकार ने बोला आप जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज बाहर भेजेंगे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो लोगों ने बोला ये तो अच्छा हो गया, हम तो टैक्स नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास तो विदाउट जीएसटी हमें सारी बिल रेज करना होगा। गवर्नमेंट ने कहा हाँ यस, कि आपको विदाउट जीएसटी बिल रेज करना होगा फॉरेन पार्टी को, और वो आपको विदाउट जीएसटी आपको पेमेंट करेंगे, और आपको हमें 1 रुपया भी जीएसटी का जमा कराने की जरूरत नहीं है। लोग खुश हो गए, लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया। कोई दिमाग दिमाग लोग आए कि किसी बंदे ने दिमाग लगाया और उसने कहा सर आप क्या बेनिफिट दे रहे हैं, जो गुड्स मैंने बाहर भेजे थे उसके परचेज करते टाइम तो मैंने टैक्स पे करा था, उस टाइम तो वो एक्सपोर्ट नहीं था ना। नेस्ले ने जब मैगी किसी और से पीछे खरीदी थी उसने तो टैक्स लगाया था, और मैंने उसको टैक्स आपकी तरह आपके बिहाफ पे पे कराए। मैंने 1000 रुपए की मैगी खरीदी, उसने 18% के हिसाब से 180 मेरे बिल पे लगाए, मैंने 1180 रुपए पे करे हैं। आई बिलीव 180 रुपए उसने आपको जमा करवा दिए होंगे, तो मेरे लिए तो मैगी 1180 की पड़ गई। आप जो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट का टैक्सेस का एक्सपोर्ट नहीं करना, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? जो मैगी मैं 1180 रुपए की पड़ रही है जिसके अंदर तो टैक्सेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो मैं तो आपके ना चाहते हुए भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ टैक्सेस का। तो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया, उन्होंने कहा आप सेल के ऊपर जीएसटी मत लगाइए, प्लस जितना भी आपका आईटीसी आपके पास रखा हुआ है हम आपको उसको कैश में वापस कर देंगे। उसको गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स का या सर्विसेज का, तो हम आपको जो आईटीसी लगा था, जो आपने परचेज के टाइम में टैक्स पे करा था, हम उसका रिफंड आपको दे देंगे। सो इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट द टैक्सेस। Thus, GST is not levied on export of goods and services. GST paid on purchases is granted as refund to the organization. Hope it is clear to you, everyone, each one of you, what actually export means. I will not cover export moreover because basic understanding is, I believe it is sufficient कि जो एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है और जो परचेज के टाइम में हम जीएसटी पे करके आते हैं उसका हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड मिल जाता है। होप टुडेज डिस्कशन वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। आपको जितना मैंने समझाया वो समझ आ गया। I'm not covering any more topics for the any more taking up any more topics because time will restrict me. अभी तक जो मैंने समझाया है आपको समझ आ गया होगा होपफुली। रजिस्ट्रेशन के बारे में आज हमने डिस्कशन करा है, हमने रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज के बारे में डिस्कशन करा है, और हमने एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी के बारे में डिस्कशन करा है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन आई एम रेडी टू टेक इट अप। एनी कंसर्न्स, एनी डाउट्स, प्लीज ड्रॉप मी। You can drop me, and I would humbly request you, each one of you, to please provide your valuable feedback. It is very, very much required for you for undertaking and improving ourselves for the next 6 days, improving the future for the next batches coming on. So it is we humbly request you to provide your valuable feedback either in the chat box, either on the WhatsApp number, either on the email, or you can personally call us. We don't. I have one query from the Aniket. I will take it up. Aniket, you are asking if I import from USA. First, you have to clarify whether you are importing goods or you are importing services. If you are importing services, I'll clear both goods and services, not an issue. If you are importing services, then you have to pay tax under reverse charge mechanism, as we have discussed today. If you are importing goods, then it is out of the GST ambit. GST law does not apply on that. The custom laws comes. अगर कोई भी गुड्स इंडिया के कस्टम पे बाहर से आते हैं तो कस्टम लॉ उस पे अप्लाई होता है, और उसके ऊपर आपको इंडियन में एंटर करते टाइम पे इंडियन कस्टम स्टेशन के ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, सरचार्ज पे करना होता है, और इंडियन इक्वल जीएसटी रेट होता है वो आपको पे करना होता है।
BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, उसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, वो कॉस्ट होती है कंपनी के लिए। सरचार्ज होता है 3% to 10% रेंज, वो भी कॉस्ट होता है कंपनी के लिए। उसके ऊपर IGST लगता है, वो आपके लिए बेनिफिट मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है उस चीज का, उसकी आपको बुक्स में अकाउंटिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू आउट, 100 रुपीज का अगर कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसके ऊपर 5% का BCD लगता है तो 105 रुपए बन जाता है। 105 रुपए के ऊपर 5 रुपए के ऊपर 10% का लेस से सरचार्ज लगता है, तो इट बिकम्स 105.5, क्योंकि 5 रुपए के ऊपर 10%, 50%, 105.5, और फिर 105.5 के ऊपर 18% IGST लगता है। लेट्स टेक एग्जांपल, वो 6 रुपए बन जाता है, तो 111 रुपए आपकी एक्चुअली में कॉस्ट पड़ती है। जब गुड्स आपके कस्टम स्टेशन पे आते हैं तो आपको बिल ऑफ लेडिंग दिखाना होता है, और आपको 11 रुपए सरकार को जमा कराने होते हैं, 5 रुपए BCD के, 50 पैसे सरचार्ज के नाम से, एंड 6 रुपए IGST के नाम से। जब बुक्स में आप एंट्री करते हैं तो परचेज में आप 105.5 डालेंगे, क्योंकि BCD का क्रेडिट भी नहीं मिलता और सरचार्ज का क्रेडिट भी नहीं मिलता। जो 6 रुपए होते हैं, वो 6 रुपए आप एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आप आउटपुट लायबिलिटी जब इंडिया में सेल करेंगे तो उसके अगेंस्ट में यूटिलाइज कर लेंगे। होपफुली इट इज क्लियर नाउ। Any more queries, please? For e-commerce operator, your query means, what is your query for e-commerce operator? How can we maintain stock? E-commerce operator stock, I haven't got your query, please explain. You can open your mic. Any more queries? Then you can write it up. Any other person, if you have any queries? Yeah, Niket, I'm doing it. No, it will not be considered out as an export because it is a branch. Indian ICC Bank providing services to ICC Bank located outside will not be considered an export. They have to levy IGST on that, and outside Indian company is required to reimburse that also. It will not be export. I am a seller on Flipkart, but I can't maintain stock and I need to understand your query first. First of all, I am a seller on Flipkart, but I can't maintain stock and payment. Stock and payment. Why you can't maintain stock and payment? The goods are not withheld with you, or the Flipkart is considered taking the care of your goods? Aniket, you can call me. I think so, because it's, I think, a big query. Stock like purchase. Okay. So are you an e-commerce operator, or are you doing business on, you are using the Flipkart platform for you doing your business? Yeah, you please call me, because I need to understand, because e-commerce again have a very tedious tax deductible that is source requirement also, that I will explain you. Any more queries? I request you and let you know.
So hope you queries are resolved. But if case you still face any queries, then please feel free to write us. We are happy to take the queries. And again, requesting you to provide the feedback because it will help us to give you a better learning sessions for another 6 days. Thank you. Thank you very much. I'm taking test for the day. Thank you.